اگر ہم نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کنٹرول نہیں کی تو ہماری پاکستان کا فیوچر بہت خطرے میں ہے۔ بھائی اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے صدر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں یہ عناصر جو ہیں کیا مقصد ہے ان کا۔ یہ جو خون ناحق ہے یہ کس کے سر پہ ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے ذہنوں میں گولوں کی وہ گن گرج آج بھی زندہ ہے جو 3 سے 11 جولائی 2007 کے دوران لال مسجد آپریشن میں برسائے گئے، اور آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی کروڑوں عوام ان لمحات کو نہیں بھلا پائے جو آپریشن سائلنس سے منسوب ہیں۔ آپریشن سائلنس کا مقصد کیا واقعی دہشت گردی کا خاتمہ تھا یا اس کے مقاصد کچھ اور تھے؟ اس رپورٹ میں حکومتی موقف، لال مسجد انتظامیہ کے مطالبات، دینی جماعتوں کی کردار اور عام شہریوں کے خیالات کے ذریعے حقائق پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیاسی افق پر لال مسجد تحریک ختم نبوت کے وقت نمودار ہوئی، اور پھر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سیاسی تحریک میں بھی لال مسجد نے اہم کردار ادا کیا۔ لال مسجد کے خطیب مولانا عبداللہ نے 80 کی دہائی میں اسلام آباد میں نئی مساجد اور مدارس کی تعمیر کی تحریک چلائی، اور اس دوران بچوں کی تعلیم کے لیے جامعہ فریدیہ اور بچیوں کے لیے جامعہ حفصہ کے نام سے دینی مدارس کی بنیاد رکھی، لیکن ان کے اپنے چھوٹے بیٹے عبدالرشید نے مدرسہ کی تعلیم سے راہ فرار اختیار کی، بعد ازاں قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اور وزارت تعلیم اور یونیسکو میں ملازمت کی۔ لال مسجد کے پہلے خطیب مولانا عبداللہ 1998 میں جب ٹھیک اس جگہ ایک نامعلوم گولی کا نشانہ بنے، ان کے بڑے بیٹے مولانا عبدالعزیز کو لال مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا۔ والد کے قتل کے بعد عبدالرشید غازی نے مسجد مدرسے کا رخ کیا، داڑھی رکھ لی اور نائب خطیب کی ذمہ داری سنبھال لی۔ 9/11 کے بعد عبدالرشید غازی پہلی بار منظر عام پر آئے جب افغانستان پر امریکی حملوں کے خلاف احتجاجی تحریک شروع ہوئی۔ پھر عبدالرشید غازی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوئے اور قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے مسجد مدرسہ پر چھاپا مارا۔ 2006 اور 2007 کے دوران CDA نے 7 مساجد مسمار کر دیں اور 80 مساجد کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کرنے کا فیصلہ کیا، تو 22 جنوری 2007 کو جامعہ حفصہ کی ڈنڈا بردار طالبات نے چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر کے حکومت کی رٹ چیلنج کر دی۔ چلڈرن لائبریری پر اس لیے قبضہ کیا کہ مسجد امیر حمزہ کا بدلہ لیا جائے۔ جب میں لائبریری میں پہنچی ان کے قبضہ کرنے کے بعد تو انہوں نے ہر چیز کے اوپر بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، مسجد امیر حمزہ کا لکھ کے لگایا ہوا تھا۔ ابھی لائبریری کا قبضہ واگزار نہ ہوا تھا کہ 6 اپریل 2007 کو لال مسجد سے نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا گیا۔ ہم اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جس کے ساتھ جامعہ حفصہ کا الحاق تھا، انہیں ان کی رکنیت منسوخ کرنا پڑی۔ CDs کو نظر آتش کرنے، آنٹی شمیم، چینی خواتین اور پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنانے جیسے واقعات پیش آئے تو حکومت نے باقاعدہ آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ لال مسجد انتظامیہ نے بھی فدائی حملوں کی دھمکیاں دیں۔ انہوں نے وہ چینیوں کو پکڑ لیا، پھر وہ انوائرنمنٹ منسٹری کو جلا دیا، ان کی گاڑیاں تباہ کر دی۔ کیا کرے آدمی؟ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اپنے جسموں سے بم باندھ کر تمہارے والوں سے ٹکرا جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے آپریشن کے لیے ایک طرف پنجاب پولیس، رینجرز اور فوج کی خدمات حاصل کی، تو ساتھ ہی ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری چودھری شجاعت حسین کو سونپی گئی۔ جو بچوں، خواتین اور طلباء کو یرغمال بنایا گیا ہوا ہے، ان کو اندر سے بحفاظت نکالنے کے لیے اندر موجود لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ ہم نے یعنی یہاں تک کہہ دیا چودھری صاحب سے جو بات ہوئی کہ پیش رفت کر دیں جس کی ویزیبلٹی نظر آ جائے لائبریری خالی۔ میڈیا نے بھی تمام آپریشن کی براہ راست لمحہ بہ لمحہ کوریج کا اہتمام کیا۔
सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 जुलाई को लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के अतराफ मोर्चा बंदी की तो मदरसा के तुलबा और तालिबात सड़क पर निकल आए। इसी दौरान आंसू गैस के शेल चले और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की इब्तिदा किसने की अभी तक तय नहीं हो सका, लेकिन इब्तदाई फायरिंग के नतीजे में ही रेंजर्स का एक एहलकार, मदरसे का एक तालिब इल्म और एक सहाफ़ी जाँ बहक हो गए। मुश्तिल तलबा ने करीबी सरकारी स्कूल पर कब्जा कर लिया, स्टेट ऑफिस और वजारत माहौलियात की इमारत को आग लगा दी। रात गए तक फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा और सुबह तक 12 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए। ऑपरेशन की पहली रात ही पूरे इलाके की बिजली मुनक़ता कर दी गई। फिर अगली शब G6 में कर्फ्यू नाफिज हुआ तो बहुत से अफराद नकले मकानी कर गए। ऑपरेशन के दूसरे रोज़ ये इतलात भी आने लगी कि मौलाना अब्दुल रशीद गाजी उलमा कमेटी से मुज़ाकरात के बाद हथियार डालने पर रजामंद हो गए हैं। गाजी रशीद साहब को सुना और उन्होंने कहा कि जी हम गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। गाजी अब्दुल रशीद के साथ कोई डायलॉग, जैसे कि मुख्तलिफ उसमें आ रहा है, कोई डायलॉग शुरू नहीं किया गया और ना हम डायलॉग करना चाहेंगे। लाल मस्जिद के हवाले से जारी कशीदगी में अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब मौलाना अब्दुल अजीज़ ठीक इस जगह सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना अब्दुल अजीज़ बुर्का पहनकर मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लाल मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि उन्हें धोखे से बाहर बुलाकर सरकारी टेलीविजन पर तज़हीक की गई। हुकूमत के खुद बंदों ने उन्हें फ़ोन किया और उनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप आ जाएं या गाजी साहब आ जाएं, आप दोनों में से कोई आ जाए। मशवरा तय हुआ, इस्तिखारे में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का नाम आया। मौलाना अब्दुल अजीज़ की गिरफ्तारी के बाद तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मदरसे से बाहर आ गई। रात तक 1200 से ज़्यादा तुलबा और तालिबात ने खुद को सरकारी एहलकारों के हवाले किया। उम्मे हसन साहिबा हैं, वो मुसलसल तालिबात से ये कह रही थी कि बच्चों आपके घरों से जो आ रहे हैं तो आप लोग उनके साथ चले जाएं। ऑपरेशन के दूसरे रोज़ इंतजामिया ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा किया तो अगले रोज़ अब्दुल रशीद गाजी ने हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उनको कानून के हवाले अपने आप को करना चाहिए फौरी तौर पर। दूसरी तरफ ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहरे भी शुरू हो गए और सबसे ज्यादा एहतजाज सूबा सरहद में हुआ। कल अदम तंजीम नफाज शरीयत मोहम्मदी ने ऐलान जहाद की धमकी दे दी। ऑपरेशन के चौथे रोज तक 1221 तुलबा और तालिबात बाहर आ चुके थे, जिनमें 795 मर्द और 426 खवातीन शामिल थीं। इनमें से ज्यादातर बाहर आ गए और सिर्फ कोई 1300-1400 लोग अंदर रह गए। अगर अलकायदा के लोग थे तो वो क्यों नहीं पेश किए, अगर गैर मुल्की थे तो वो क्यों नहीं पेश किए, अगर दहशतगर्द थे तो वो क्यों नहीं पेश किए। मुत्तहिदा मजलिस अमल के अरकान पार्लियामेंट की कोशिश से मुज़ाकराती अमल एक बार फिर बहाल किया गया और अरकान पार्लियामेंट को मस्जिद तक जाने की इजाज़त दे दी गई, ताहम कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना हो सकी। ऑपरेशन के 5वें रोज़ लाल मस्जिद इंतजामिया की जानिब से 30 तालिबात की हलाकत और इज्तिमाई तदफीन का ऐलान किया गया। उस वक्त तक मदरसा में 1800 तुलबा और तालिबात मौजूद थे। हर तरफ से मायूस होकर जब शेलिंग होती थी, गोले बारूद फटते थे तो लड़कियां अपने हाथ उठा लेती थी और कहती थी, अल्लाह हम लावारिस हो चुके हैं, ज़मीन वालों की तरफ से तो कोई भी नहीं आएगा, अब तू ही हमारी मदद को आ। उसी शब स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम फायरिंग का निशाना बन गए और एक कैप्टन जख्मी हो गए। ऑपरेशन साइलेंस के छठे रोज सिक्योरिटी हुकाम ने प्रेस क्लब कैंप ऑफिस पर धावा बोल दिया और बराह रास्त कवरेज करने वाली आज टीवी की टीम को वहां से निकाल दिया। उधर दीनी मदारिस की तंजीम विफाकुल मदारिस ने हुकूमत से जंग बंदी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल रशीद गाजी ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को हकायक से आगाह करने के लिए मस्जिद के अंदर आने की दावत दी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। अंदर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त भी 8 पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे वो यगमाल बने हुए हैं। मुझे कहा अंदर आइए हदी साहब और बिल्कुल से थी, हम आपको कोई हाथ नहीं लगाएंगे, आप वापिस जाना चाहेंगे हम वापिस भी भेज देंगे। लेकिन हमें यकीन नहीं था कि काम का हमारी हार्ट में ब्लैकमेलिंग कोई शुरू हो जाए। और अगले ही रोज बराह रास्त कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स खुसूसन आज टीवी की नशरियात बंद कर दी गईं। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस नवाज अब्बासी ने कायम काम चीफ जस्टिस को एक खत लिखा जिस पर 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुज़ाकरात की हिदायत की।
चौधरी शुजात हुसैन और उलमा के एक वफ्द ने 9 जुलाई के दिन बातचीत शुरू की जो रात गए तक जारी रही। ये राब्ता मोबाइल फ़ोन और लाउड स्पीकरों पर हो रहा था। इस दौरान अब्दुल रशीद गाजी ने वफ्द को मस्जिद में आने की दावत दी, तहम सिक्योरिटी हुकाम ने मुज़ाकराती टीम को इजाज़त नहीं दी। दूसरी तरफ अब्दुल रशीद गाजी मस्जिद से बाहर आने को तैयार न थे। मोबाइल फ़ोन पर मुज़ाकरात रात तकरीबन 1 बजे तक जारी रहे और हुकूमती टीम ने मौलाना गाजी और अहले खाना को महफूज रास्ता की पेशकश की। हुकाम की जानिब से बताया गया कि मुआहदा तय पा गया है, ताहम सरेंडर करने का तरीक़ेकार तय होना अभी बाकी है। बादना चौधरी शुजात हुसैन ने रात के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की और रात 2 बजे के बाद मुज़ाकराती टीम में बातचीत का एक और दौर हुआ, जिसके बाद अचानक सुबह 3:45 बजे चौधरी शुजात हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी का इजहार किया। मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा मैं मायूसी के साथ जा रहा हूँ। मदरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर पहुँच चुकी हैं जनूब और शिमाल की तरफ से, लेकिन उनको सख्त रेजिस्टेंस का सामना है और इस वक्त इंटेंस फायरिंग जारी है। मौलाना अब्दुल अजीज़ की अहलिया उम्मे हसान और उनकी बेटी को मदरसे से बाहर निकलने पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाल मस्जिद के नायब खतीब मौलाना अब्दुल रशीद गाजी अपनी वालिदा और साथियों समेत खालिक हकीकी को जा मिले। भाई साहब के पास एक पिस्टल थी छोटी सी और एक साथी के पास एक क्लैशिनकोफ थी। उन्होंने रेंजर्स वालों पे वो फौज के आर्मी के ऊपर जो है फायर किया। उन्होंने चारों तरफ से उन 6-7 नौजवानों के ऊपर जो है फायर किया और उसके नतीजे में वो शहीद हो गए। वफाकुल मदारिस के उलमा ने मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद की और इल्ज़ाम लगाया कि मुआहदे का मुसवदा रात गए ईवान सदर में तब्दील किया गया। जो वहाँ से आया वो ये था कि मौलाना अब्दुल रशीद गाजी को इस्लामाबाद में किसी घर में महफूज बंद रखा जाएगा और ये वो महफूज रास्ता नहीं था, लेकिन आखिर में मौलाना अब्दुल रशीद गाजी इस पर भी तैयार हो गए थे। हम समझते हैं कि ऑपरेशन तयशुदा था। जब बच्चियों ने लाइब्रेरी पर कब्जा किया, उसके बाद जब एजाजुल हक पहली मरतबा आया तो उसने आकर ये बात कही थी कि अब फौज आएगी और तुम्हें मारकर बड़े बड़े ट्रकों में बोरियों की तरह डालकर फेंक देगी। हुकूमत और लाल मस्जिद इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात में शामिल अब्दुल सत्तार ईदी और उस वक्त की हुकूमती शख्सियात का मौक़िफ़ इससे ज़रा मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि हतमी ऑपरेशन का फैसला मौलाना अब्दुल रशीद गाजी की ज़िद और हरदर्मी की वजह से करना पड़ा। तरले किए, मेहनतें की, वास्ते डाले, खुदा का वास्ता डाला, उनकी वालदा का वास्ता डाला, उनके माँ बाप का वास्ता डाला। मैंने तो हाथ बांध के कहा जी खुदा के लिए हमारी बात मान जाए और ये इस तरह ना करें। सवाल इनको मारने का नहीं था, इनको बचाने का था। अगर इनको मारने का सवाल होता तो 1 दिन में हो सकता था। अब्दुल सत्तार ईदी ने बताया कि उन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त पर 150 अफराद के कफन का इंतजाम किया, ताहम 73 अफराद को दफनाया गया जो तमाम मर्द थे। अब्दुल सत्तार ईदी का भी ये मानना है कि मदरसे में शहीद होने वाली तालिबात की असल तादाद अभी तक राज है। औरतों के तो कोयले कोयले हो गए थे, उनका पता ही नहीं चला कितने मरी कितने नहीं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। उनकी लाशें उठाई, उसमें कोई गैर मुल्की नजर नहीं। कोई केमिकल इस्तेमाल किया था जिससे उनके जिस्मों को आग लगी हुई थी, और जिस तरह आप रबड़ को आग लगा दें तो वो बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपक सी जाती है और हल्की हल्की उससे आग लगी होती है, इस तरीके से उनको आग लगी हुई थी। मंगल 10 जुलाई 2007 की सुबह 4:15 बजे के करीब शुरू होने वाला ऑपरेशन शाम 7 बजे के करीब मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत ने दावा किया कि आखिरी रोज़ 73 लाशें बरामद हुईं, जबकि पूरे ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 110 बताई गई, जिनमें 86 अस्करियत पसंद, 13 आम शहरी और 10 सिक्योरिटी एहलकार बताए गए, जबकि हुकूमत का ये भी दावा है कि ऑपरेशन में तालिबात हलाक नहीं हुई। बाकी हमारे बच्चे बच्चियाँ कहाँ चले गए? हुकूमत ने जिन अफराद को गैर मुल्की जंगजू करार दिया था वो अपने ही मुल्क के बाशिंदे निकले। फौजी ऑपरेशन में हलाक होने वाले अफराद की लाशें रात भर लाल मस्जिद से I-8 में कायम एक मुर्दा खाने में मुंतकिल की जाती रहीं। लवाहिकीन मौलाना अब्दुल रशीद गाजी, उनकी वालिदा और मौलाना अब्दुल अजीज़ के बेटे हसान को E7 में वाक़े जामिया फरीदिया में दफनाना चाहते थे, ताहम हुकूमत ने ऐसा नहीं करने दिया और मौलाना अब्दुल रशीद समेत तमाम अफराद की लाशें उनके आबाई गांव राजनपुर पहुंचा दी गईं। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर मौलाना अब्दुल रशीद गाजी की 3 बहनों को तदफीन में शिरकत के लिए राजनपुर ले जाने का इंतजाम और मौलाना अब्दुल अजीज़ को पेरोल पर रिहा किया गया। ऑपरेशन साइलेंस मुकम्मल होने के बाद भी G6 में 1 रोज़ तक कर्फ्यू नाफिज रहा और सिक्योरिटी फोर्सेस लाल मस्जिद और मदरसा में हलाक होने वाले अफराद की लाशें मुंतकिल करती रहीं, जिनकी तदफीन के लिए रात की तारीकी में इज्तिमाई कब्रों की खुदाई की गई। हमारे सदर साहब ने ये कहा था कि तुम लोग मेरी बेटियां हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो हम अपने सदर साहब से ये पूछते हैं कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है?
दूसरी तरफ वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा में भेजा था, ऑपरेशन साइलेंस के बाद अपने बच्चों की लाशें वसूल करने के लिए विफाकी दारुल हुकूमत की सड़कों पर रुलते रहे। अच्छी तालीम दी सी, मेरा बच्चा भी बाप भी हाफिज सी, 35 मुसल्ले ने बाप ने सुनाए। उस तो बाद मेरा बेटा खानदानी हाफिज आ रहा, साढ़े तक खानदान चुना हाफिज ही मुक जाएगा। हुण तो मेरा बच्चा कोई हाफिज बनने वाला है ही नहीं। मेरी नज़र में ये एक बहुत कामयाब ऑपरेशन था और बहुत सही तरीके से हैंडल हुआ। जो भी इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है और जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है, वो मेरे ख़्याल में वो बहुत अनपेट्रियाटिक है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाल मस्जिद और मुतल्लिका इमारतों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के बाद पहली बार मीडिया के नुमाइंदों को जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद का दौरा कराया। ताहम मीडिया के नुमाइंदों को भी आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो असला दिखाया जो लाल मस्जिद इंतज़ामिया से मंसूब किया गया था। Militants were using all kinds of weapons. They had machine guns, they had rocket launchers, they were using hand grenades, small arms. इनके लिए कौन सा मुश्किल था कि अंदर असलहा ला के रखते और उसके बाद कह देते कि ये हमारा है, यानी जामिया हफ्सा वालों का है। मीडिया के नुमाइंदों के दौरे के चंद रोज बाद ही जामिया हफ्सा की इमारत को मुनहदम कर दिया गया। लाल मस्जिद ऑपरेशन की कानूनी और आईनी हैसियत के बारे में पहले ही कई शकुक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन जामिया हफ्सा के पुरअसरार इन्हदाम ने कई सवालात को जन्म दिया। लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान दीनी जमातों के मायूस कुन किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें अगर मुत्तफ़िक़ हो जाती और जो है इस मसले को संजीदगी के साथ लिया जाता, तो मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है इस हद तक पहुंचता। इतने लोग APC बाहर मनाते रहे हैं, मेरा भी उनसे सवाल यह है कि तुम्हारी APC और जमहूरियत ज़्यादा अहम थी या इंसानी जाने? उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया है, उनके जय्यद उलमा यहाँ आए, सारा कुछ किया, लेकिन जहाँ तक कर सकते थे उन्होंने किया। लाल मस्जिद ऑपरेशन ने सिर्फ दीनी मदारिस पर ही गहरे असरात मुरतब नहीं किए, बल्कि कौमी सियासत का भी रुख बदल दिया और 18 फरवरी के इंतखाबी नताइज भी उसके अक्कास हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद मुल्क के तूल अर्ज में खुदकश हमलों और धमाकों में भी तेज़ी आई और सिर्फ 6 माह में तकरीबन 45 खुदकश हमले हुए, जिनमें तकरीबन 600 अफराद हलाक और 1500 से ज़्यादा जख्मी हुए। ऑपरेशन से पहले 6 माह के दौरान सिर्फ 11 धमाके हुए थे, जिनमें 103 अफराद हलाक और तकरीबन 200 अफराद जख्मी हुए। आपने आग लगाई, अपनों को आग लगाई, तो उसके रद्द-ए-अमल में जो कुछ हुआ अब आपको बर्दाश्त करना है उसे। ये हमारे ही भाई बहन हैं, हमारी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हैं और भटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को लाल मस्जिद और जामिया अफरीदिया दोबारा खोलने का हुक्म दिया। जहाँ बहक होने वालों के वरसा को खून बहा और जामिया हफ्सा की तामीर नौ का भी हुक्म दिया। अब 1 साल होने को अब तक उसकी तामीर का आगाज़ नहीं हुआ। जामिया फरीदिया के तालीमी सिलसिले को बहाल करना चाहिए, वहाँ से फोर्सेस को हटाना चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ और बाद में आने वाली हुकूमत ने भी मदरसा इस्लाहात से मुतल्लिक़ बुलंदोबाग दावे किए, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किया गया। अगर तो हुकूमत शुरू से जैसे स्कूल और कॉलेजेस पे मेहनत कर रही थी, अगर ये मदारिस पे भी मेहनत करती इखलास के साथ, तो हम ज़रूर इनके साथ मिलके काम करते, लेकिन इन्होंने हर मौके पर मदारिस की और उलमा कराम की तौहीन की। साना लाल मस्जिद की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वो फौरी तौर पर एक आला सतही इंक्वायरी कमीशन बनाए, बाएतमाद जजेस पर बनाए, जो इस बात की पूरी तहकीक करे कि लाल मस्जिद के साने का जिम्मेदार कौन है, ये कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया, किस तरीके से यहाँ पर असला आया, किस तरीके से यहाँ पर फारूक आए और वो फारूक का क्या मकसद था। ऑपरेशन साइलेंस को मुकम्मल हुए आज 1 साल होने को है, लेकिन आज भी लाल मस्जिद के करीब वाक़े मुनहदम शुदा जामिया हफ्सा के मकाम पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। ऑपरेशन साइलेंस के मकासद चाहे कुछ भी हों, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ऑपरेशन साइलेंस के बाद लाल मस्जिद से उठने वाली आवाज़ें ऑपरेशन से पहले उठने वाली आवाज़ों और हालात से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। रोज़ाना दर्जनों तलबा व तालिबात और वालिदैन अपने प्यारों को याद करके रोते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं।